Okay, in biomolecules, today we are going to study the topic amino acid. ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स हम लोग पढ़ रहे थे, एक लेक्चर हुआ है बायोमोलिक्यूल्स का. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी amino acid. Now amino acid बायोमोलिक्यूल्स में हमने केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू किया था. तो इन केमिकल एनालिसिस में वी ऑब्टेन दैट इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन विच इज नोन एज फिल्टरेट, उसमें हमें अमीनो एसिड मिला था. अमीनो एसिड इज अ micromolecules, smaller molecules having molecular weight less than 800 or less than 1000 Dalton. So this was amino acid was obtained in acid soluble fraction. Acid soluble fraction में हमें ये मिला था. In the acid soluble fraction we obtained amino acid during the chemical evolution. During the chemical analysis of biomolecules, we obtained amino acid in the acid soluble fraction. It is known as filtrate. इसको हम लोग filtrate कहते हैं. And it is a biomicromolecules having molecular weight less than 1000 Dalton. Next, amino acid. See how it is formed. Take a methane. Methane we know that CH4 is methane. CH4 क्या होता है? मीथेन होता है. ये एक मीथेन है. हम मीथेन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं. Now we are going to do substitution of methane. Hydrogen replaced by amine group. It is a amine group. This hydrogen replaced by a variable group. R represents variable group, and another H is replaced by carboxylic acid. It is called carboxylic group. और इधर हाइड्रोजन ही रहता है. तो अब ये जो बना है इसी को कहा जाता है अमीनो एसिड. दिस इज नोन एज अमीनो एसिड. इट इज अ substituted methane. It is substituted methane having 4 valency. इसमें 4 वैलेंसी है. अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, और R जो है मीन्स वेरिएबल ग्रुप. इट हैज वेरिएबल ग्रुप. दिस सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ये जो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है इसी को कहा जाता है अमीनो एसिड. व्हाई इट इज कॉल्ड अमीनो एसिड? लुक एट दिस नोमेनक्लेचर. इट इज कॉल्ड अमीनो एसिड. व्हाई? Because it has amine group into it and an acidic group into it. A methane is substituted with 4 valency, then it formed with 4 valency having amine group on one side and carboxylic group on another side. So it formed amino acid. Hence it is called amino acid. Now depending on various type of R group, it is variable group. It can be simple hydrogen also, it can be a 1 carbon, or it can have 2 carbon, depending on different various R group. There are many various kind of amino acids. So this variable group, R group, form different types of amino acid. Okay, the different type of R or variable group form different amino acids. So difference in R group will form different type of amino acid. All right, now see this amine group and carboxylic group. Amine group and carboxylic group is attached to same carbon. This carbon is called alpha carbon. क्या बोलते हैं इसको? अल्फा कार्बन बोलते हैं. अगर सेम कार्बन से अमाइन ग्रुप अटैच्ड हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड हो उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं. And that amino acid is known as alpha amino acid. But it is called alpha amino acid. Why it is so? Because from the same carbon amine group and carboxylic group is attached, and that carbon is called alpha carbon, and that amino acid is known as alpha amino acid. Okay,
Now see, depending on various R group, there are various kind of amino acids. But it is important to note down that only 20 types of amino acid are used to make protein. The chain of amino acids will form protein. Now see, there are various kind of amino acids. Many kinds of amino acids are there depending on the R group. But to make protein, only 20 types of amino acids are used. Next, moving forward. How many types of amino acids are used to make protein? Only 20 types of amino acids are used to make protein. But there are various kind of amino acids. Don't get confused that it is only 20 types. Amino acids are of many types, but 20 of them are used to make protein. This amino acids is biomacromolecules found in acid insoluble fraction. The chain of amino acids will form protein. Okay. Few examples of amino acids we are going to make. Carbon, amine group, carboxylic group, hydrogen. If in place of R hydrogen is there, अगर R के place पे hydrogen है, then this amino acid is called glycine. It is called glycine. जब R की जगह पर हाइड्रोजन लगा हो तो उसे ग्लाइसिन कहते हैं. And it is simplest amino acid. It is the simplest amino acid. Alright. Now suppose if amine group is there attached with alpha carbon, carboxylic group is there. If in place of R, methyl group is attached, CH3 is attached, methyl group is attached, then this is the structure of alanine. This is a simple amino acid if hydrogen is present. This is alanine if methyl is present. Now, if in place of amine, hydrogen, carboxylic acid, अगर इनके जगह पे CH2OH लग जाए, अगर R की जगह पे CH2OH लग जाए, इसे कहा जाता है, this is known as hydroxymethyl. If in place of R CH2OH is present, then this is the structure of serine. ये क्या है? सेरीन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. अगर मान लीजिए R की जगह पे कोई एरोमेटिक रिंग कंपाउंड प्रेजेंट है. क्या बोला मैंने? इफ इन प्लेस ऑफ R aromatic ring is present, तो उसे कहते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. दैट आर नोन एज एरोमेटिक अमीनो एसिड. क्या बोलते हैं उसे? एरोमेटिक अमीनो एसिड बोलते हैं. एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के 3 एग्जाम्पल है. आपको वो तीनों एग्जाम्पल याद रखना है. जिसमें रिंग प्रेजेंट होगा, एरोमेटिक रिंग होगा, उसके एग्जाम्पल है टायरोसिन अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन एंड phenylalanine. These 3 are aromatic amino acids. They have aromatic ring present in them in place of R. यहाँ पे अगर R की जगह वेरिएबल ग्रुप की जगह कोई रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो. ओके, कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिसमें सल्फर प्रेजेंट है. R की जगह यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है. तो दैट इज कॉल्ड सल्फर कंटेनिंग, उसको कहते हैं हम लोग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. कुछ नहीं, बस आपको इनका एग्जाम्पल याद रखना है. सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर सिस्टीन एंड मिथियोनिन. सिस्टीन और मिथियोनिन आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स. ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग.
अब ध्यान से देखिए, अमीनो एसिड्स जो है उसका प्रॉपर्टीज़ जो होंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो किस पे डिपेंड करेंगे? जिस चीज़ से जो उसमें सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड लगा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। सिंपल सा बात है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, ये किस पे डिपेंड करेगा? बताओ किस पे डिपेंड करेगा? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड विल डिपेंड ऑन अमाइन ग्रुप, जो भी उसमें अमाइन ग्रुप है उस पे डिपेंड करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे डिपेंड करेगा, और वेरिएबल ग्रुप, आर मीन्स वेरिएबल ग्रुप पे डिपेंड करेगा, वेरिएबल ग्रुप पे डिपेंड करेगा। तो किसी भी अमीनो एसिड्स का फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब देखिए, अमीनो एसिड्स के देयर आर 3 नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट कुड बी न्यूट्रल, दैट कुड बी एसिडिक, दैट कुड बी बेसिक। देयर आर 3 नेचर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स के 3 natures are there. One is neutral amino acids, neutral amino acid, acidic amino acid, next basic amino acid। अब देखो ध्यान से समझो, बहुत ईजी है। हम जानते हैं अमीनो एसिड में एक अमाइन ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है। अगर उनका नंबर, इफ द नंबर ऑफ अमाइन ग्रुप इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप, मतलब जितना उसमें अमाइन ग्रुप लगा हुआ है उतने ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होगा। ये दिस विल बी न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। इट्स एग्जांपल आर लाइक हमने जो अभी भी बनाया, ग्लाइसिन बनाया था। ग्लाइसिन में हमने देखा जितने अमाइन ग्रुप थे उतने ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड। एनसीईआरटी में दिया हुआ है वेलिन। वेलिन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो द सेम नंबर ऑफ अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दीज आर एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। बट इफ फॉर एग्जांपल सपोज इन द आर ग्रुप देयर इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप एडेड इन आर, आर ग्रुप में भी कुछ मिथेन है CH2 और फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, तो वो क्या बन जाएगा? सपोज मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, आर ग्रुप की जगह CH2 और फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है। तो यू कैन सी ओवर हियर दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर देन अमाइन ग्रुप। When carboxylic group is more than amine group, then it is called acidic amino acids. Acidic amino acids से बोलेंगे, उसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, एसिडिक होगा। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर देन अमाइन ग्रुप। इट्स एग्जांपल आर ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड नाम में ही एसिड है, तो समझ में आ रहा है कि एसिडिक अमीनो एसिड्स है। और एस्पार्टिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड्स आर 2 examples where carboxylic group is more than amine group, which are acidic amino acids. Next moving to basic amino acids. Basic amino acids में सिंपल है, अगर amine group ज़्यादा है, if amine group is more compared to कार्बोक्सिलिक ग्रुप, then it is called basic amino acids। अगर अमाइन ग्रुप ज़्यादा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। इसके एग्जांपल है लाइसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन इसके एग्जांपल्स हैं। लाइसिन और आर्जिनिन प्रेजेंट होते हैं हमारे हिस्टोन प्रोटीन में, और हमें पता है कि हमारा जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। वाई इट इज़ पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज इट इज़ बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो बना हुआ है वो लाइसिन और आर्जिनिन का है, और लाइसिन आर्जिनिन कैसा अमीनो एसिड है? बेसिक अमीनो एसिड, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन कैसा हुआ? बेसिक हुआ। डीएनए कैसा होता है? फॉस्फेट प्रेजेंट होने की वजह से डीएनए एसिडिक नेचर का होता है और वो उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। डीएनए हैज़ नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन हैज़ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ basic amino acids present in it. So histone protein पॉजिटिव चार्ज, डीएनए में नेगेटिव चार्ज, तो पैकेजिंग में हेल्प करते हैं।
डीएनए के पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करता है. दिस इज द रीजन व्हाई हिस्टोन प्रोटीन हैव पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन. अब हम लोग देखते हैं जो अमीनो एसिड्स है, इसमें अमाइन ग्रुप है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग दैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो एसिड is ionizable in nature. इसका क्या मतलब हुआ? आयोनाइजेबल इन नेचर का क्या मतलब हुआ? आयोनाइजेबल इन नेचर मीन्स इट कैन लूज हाइड्रोजन प्रोटोन, इट कैन गेन प्रोटोन. आयोनाइजेबल का मतलब होता है कि वो प्रोटोन लूज कर सकता है, कैन लूज, इट कैन लूज प्रोटोन एज वेल एज एक्सेप्ट भी कर सकता है प्रोटोन को. गेन ऑफ प्रोटोन, लूज ऑफ, लॉस ऑफ प्रोटोन इट कैन, अमीनो एसिड कैन डू. लाइक इसमें अगर अमाइन ग्रुप है तो अमाइन ग्रुप एक प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक प्रोटोन लूज कर सकता है. सो इट इज आयोनाइजेबल इन नेचर. सो इन डिफरेंट सॉल्यूशन पीएच, इन डिफरेंट सॉल्यूशन पीएच, अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग पीएच में ये इट शोज डिफरेंट नेचर. ये डिफरेंट नेचर दिखाएगा अलग अलग सॉल्यूशन में, अलग अलग पीएच में. इट विल शो डिफरेंट नेचर. सपोज इन एक्स सॉल्यूशन, अगर कुछ ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे ये जो हमारा अमीनो एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक आयन, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट कैन लूज हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन प्रोटोन लूज कर दिया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बन गया? नेगेटिव चार्ज बन गया. तो यहाँ पे ये प्रोटोन लूज भी कर सकता है, या किसी ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें ये प्रोटोन गेन भी कर सकता है. ये एक अमीनो एसिड है और इसमें अमाइन ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन, और अगर इसने प्रोटोन एक्सेप्ट किया so it will have positive charge, it can have positive charge. So in different solution pH it can lose proton as well as it has a tendency that it can accept proton. So it is ionizable in nature, and also there is a tendency that it can be in the structure like NH2 hydrogen अमाइन ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ये यहाँ से लूज कर दे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर ले तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. मतलब हम एक ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, दो चार्ज है. इट इज कॉल्ड डाइपोलर आयन, डाइपोलर, इट इज कॉल्ड डाइपोलर आयन और ज्यूइटर आयन. इसी को क्या कहते हैं? ज्यूइटर आयन कहते हैं. ज्यूइटर आयन हम लोगों ने क्या देखा, ये इस तरह के स्ट्रक्चर में भी रह सकता है. डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ पीएच में इट कैन बी इन दिस स्ट्रक्चर. इट कैन हैव बोथ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज प्रोटोन एंड दैट proton can also be accepted by the amine group, and hence at that point there will be positive charge as well as negative charge. When there will be both the charge, it will form dipolar ion or dipole structure. Or it can be in this shape also, in this structure also having only negative charge, or in different solution pH it can be as positive charge also. Okay. आगे अब हमारा अमीनो एसिड फिनिश हो गया. नाउ वी आर मूविंग टू प्रोटीन.
चलिए अमीनो एसिड्स के बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटीन। अब बताइए केमिकल एनालिसिस किया था जब हमने लिविंग टिश्यू का, तो प्रोटीन हमें कहाँ पे मिले थे? ये एसिड सोल्यूबल वाले फ्रैक्शन में मिले थे या एसिड इनसोल्यूबल वाले फ्रैक्शन में? ये लार्जर मॉलिक्यूल्स है या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है? कम मॉलिकुलर वेट है या ज़्यादा मॉलिकुलर वेट है? तो समझिए ये जो प्रोटीन है इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये बड़े मॉलिक्यूल्स है, लार्जर मॉलिक्यूल्स है, इनका मॉलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है, तो इसीलिए ये एसिड में नहीं घुल पाया था, एसिड में सोल्यूबल नहीं हो पाया था। जो हमने केमिकल एनालिसिस करने के लिए ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में लिविंग टिश्यूज़ का स्लरी बनाया था, तो उस एसिड में ये नहीं घुल पाया था। उसके बाद हमने उस स्लरी को फ़िल्टर किया था, तो फिल्टर करने के बाद ये ऊपर में जैसे ना नहीं छना, क्योंकि एसिड में नहीं सॉल्यूबल हुआ तो ये नहीं छन पाया था। ये नीचे एसिड सॉल्यूबल नहीं था तो नीचे फिल्टर नहीं बन पाया, ये नहीं छना तो ऊपर कॉटन क्लॉथ जिससे हम लोग फिल्टर कर रहे थे ऊपर ही रह गया, तो इससे हम क्या बोलेंगे, ये एसिड इनसॉल्यूबल था, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स था, इसीलिए ऊपर छन्नी के ऊपर ही रिटेन रह गया। सो प्रोटीन वॉज फाउंड इन रिटेंटेड, कहाँ पे मिला था? एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में मिला था। ये एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में मिला, कहाँ पे रह गया? ऊपर रिटेन रह गया, इसीलिए इसे रिटेंटेड कहते हैं। ये लार्जर मॉलिक्यूल्स है हैविंग मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन, सो इट इज कॉल्ड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इसको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है ये लॉन्ग चेन है ऑफ अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड्स का लॉन्ग पॉलीमर है, चेन है, जॉइंड बाय, अच्छा ये जो अमीनो एसिड्स है, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, ये किससे ज्वाइन होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से, ये याद रखना, अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, क्लियर? अच्छा नेक्स्ट चीज़ हम ध्यान रखते हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, जो भी प्रोटीन्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं, प्रोटीन्स आर नेवर होमोपॉलीमर्स, प्रोटीन हमेशा हेट्रोपॉलीमर होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बस सेरीन 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 मिल के प्रोटीन बनाते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसमें सेरीन होंगे, कुछ और अमीनो एसिड्स होंगे, कुछ और अमीनो एसिड, ऐसा हो सकता है कि देयर कैन बी 50 सेरीन, then 30 histidine, 14 glutamic acids, like this it can be possible, but it can never be homopolymer. कार्बोहाइड्रेट्स जैसे होमोपॉलीमर होता है, बीटा ग्लूकोज ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज मिलके सेलुलोज बनाता है, अल्फा ग्लूकोज मिलके स्टार्च बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैन बी होमोपॉलीमर, बट प्रोटीन आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर। ये जब जितने भी प्रोटीन्स हैं ये हमेशा प्रोटीन क्या होते हैं? आर ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर, ये हमेशा हेट्रोपॉलीमर ही होगा, ये याद रखना, ठीक है? ये जॉइन किससे होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड जब भी बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड जब भी बनेगा बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग देखेंगे ग्लाइकोसाइडिक एस्टर, दैट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। कैसे? विल सी दैट। ओके, नाउ सी, सपोज दिस इज वन अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड है, दिस इज वन अमीनो एसिड R1, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज देयर, एक अमीनो एसिड ये है, यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड है R2, वन अमीनो एसिड्स एंड दिस इज अनदर अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स कैसे ज्वाइन होंगे? बाय पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ लुक हाउ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम हियर। यहाँ से क्या होगा? वाटर रिमूव होगा, क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, वाटर रिमूव होगा, वाटर के रिमूवल से क्या बनता है? यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। कैसा होगा? ये है हमारा अमीनो एसिड फर्स्ट वाला,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ से वाटर निकल गया तो किससे ज्वाइन होगा, अमाइन ग्रुप से, इस तरह से R2 हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, दिस वन, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, दिस रिप्रेजेंट्स पेप्टाइड बॉन्ड, यही पेप्टाइड बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, दिस इज रिप्रेजेंटेटिंग पेप्टाइड बॉन्ड। So you can say that peptide bond of first amine, peptide bond is formed, ये कैसे बनता है, formed between carboxylic group of first amino acids and amine group of succeeding amino acids। जो next amino acids होगा उसका amine group use होगा और पहले वाले का carboxylic group use होगा to form peptide bond। So peptide bond is represented as C double bond O NH, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को, या फिर CONH से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। इज इट क्लियर? सो प्रोटीन इज फॉर्म बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अब एक चीज़ और समझते हैं, इस तरह से जब प्रोटीन फॉर्म होगा और हम लोग जब भी कोई स्ट्रक्चर लिखते हैं, बायोमोलिक्यूल्स लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो आप लोग हमेशा याद रखना इधर वाले को लेफ्ट साइड कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड लेफ्ट साइड, ओके। फॉर व्हेन वी राइट एनी बायोमोलिक्यूल्स दिस साइड इज कॉल्ड लेफ्ट साइड एंड दैट साइड इज कॉल्ड राइट साइड, उसको राइट साइड कहते हैं। This is called left side, that one is called right side. Suppose one amino acids, another amino acids, another amino acids, another amino acids joined by peptide bond. The left side of amino acids, in the left side of amino acids, अगर ये left terminal है या left side है, तो left side of amino acids का amine group is always free. Amine group क्या होगा? Always free होगा। पहले amino acids का amine group is always free ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड्स, पहले अमीनो एसिड्स का अमाइन ग्रुप हमेशा फ्री होगा जो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एन टर्मिनल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन टर्मिनल। और जो लास्ट वाला अमीनो एसिड्स होगा जो बिल्कुल राइट साइड होगा, मान लो ये लास्ट ही है जो बिल्कुल राइट साइड होगा, इसको हम लोग कहते हैं राइट साइड, ठीक है। जब भी हम मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं दिस वन इज ऑलवेज कंसिडर्ड लेफ्ट साइड, इधर हमेशा लेफ्ट साइड या लेफ्ट टर्मिनल, इसको राइट टर्मिनल मानते हैं। तो जो सबसे लास्ट अमीनो एसिड होगा उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा फ्री होगा। सो ऑन द राइट साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ऑलवेज फ्री ऑफ लास्ट अमीनो एसिड्स, लास्ट अमीनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा फ्री होगा और उसको कहा जाता है सी टर्मिनल। इज दैट क्लियर? सो व्हेन वी राइट द चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन, इट हैज वन N terminal and another is C terminal. N terminal is present on left side and considered as first amino acids, and C terminal is present on right side where carboxylic group is free and considered as last amino acid. क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग।